The recent Indian aggression against Pakistan, violating our territorial integrity and targeting our innocent civilians, was not merely countered successfully, but instead we succeeded in turning the tables. Our response, both on the ground and in the air, left India completely baffled and shell-shocked. India tried sneaking in once again. Our counter-strike Operation Bunyanum Marsus destroyed the enemy's defenses and shattered the myth of their military might. بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک اعلان۔ کمانڈنٹ سٹاف کالج کوئٹہ میں افسران سے خطاب میں کہا، بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں جارحیت کی کوشش کی، پاکستان نے بھارتی جارحیت کا صرف جواب نہیں دیا بلکہ بازی ہی پلٹ دی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر نے بھارتی طیارے گرا کر پیشہ ورانہ مہارت کو ثابت کیا۔ آرمی چیف نے ثابت کیا کہ وہ فیلڈ مارشل رینک کے حقدار ہیں۔ بھارت کو میدان جنگ اور سفارتی محاذ دونوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو منہ توڑ جواب دیں گے، بہت جلد دہشت گردی کے ناسور کا بھی خاتمہ کریں گے۔ مزید بولے، IMF کے ساتھ کامیاب معاہدے سے معیشت کو استحکام ملا، معاشی بہتری سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئی، مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر پاکستان مارکہ حق میں کامیابی کے بعد سفارتی محاذ پر متحرک۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا چین اور سعودی عرب کے دورے کا پلان۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جون کے دوسرے ہفتے میں دورہ کریں گے۔ سول اور فوجی قیادت کے مشترکہ دو طرفہ مذاکرات اور میزبان ملک کی حالیہ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کریں گے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جون میں دیگر اہم خلیجی ممالک بھی جائیں گے۔ بھارتی فوج کے پہلی بار پاک فضائیہ کے ہاتھوں کئی طیاروں کی تباہی کا اعتراف۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان نے جھڑپوں میں بھارتی طیارے مار گرانے کا پاکستانی دعویٰ تسلیم کر لیا۔ تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد بتانے سے انکار۔ بلومبرگ کو انٹرویو میں جنرل انیل چوہان نے کہا، پاک بھارت جنگ میں ہم نے طیارے کھوئے، اہم یہ نہیں کہ وہ طیارے گرائے گئے، اہم یہ ہے کہ وہ طیارے کیوں گرائے گئے۔ ہم نے فضائی جنگ میں ٹیکنیکل غلطیاں کی جن کا ادراک ہو گیا، ہم نے اپنی غلطی پہچان لی۔ صحافی کے بار بار پوچھنے پر بھی جنرل انیل کا مار گرائے بھارتی طیاروں کی تعداد بتانے سے گریز۔ 나님 멀리 날아가는데요. 거기서 그리면서 80m 넘었습니다. 나dim 선수가 돌파를 벌리면서 포효합니다. ایک اور گولڈ میڈل نے ارشد ندیم کو گلے لگا لیا۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 86.40 میٹر کی تھرو کر کے طلائی تمغہ جیت لیا۔ سبز ہلالی پرچم جنوبی کوریا کی فضاؤں میں سر بلند، ارشد ندیم نے آخری تھرو میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ بھارت کے سچن یادو کی 85.16 میٹر کے ساتھ دوسری پوزیشن، جاپان کے سکییاما 83.75 میٹر طویل تھرو کر کے تیسرے نمبر پر۔ ارشد ندیم کی کامیابی پر اہل خانہ خوشی سے نہال، اہل محلہ نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر جشن منایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ارشد ندیم کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، ارشد ندیم نے ایک بار پھر پاکستان کا نام روشن کیا، پوری قوم کو ان کی کارکردگی پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ارشد ندیم قوم کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں۔ شاندار کامیابی کی بدولت سبز ہلالی پرچم کی شان بڑھی۔ دونوں رہنماؤں کا ارشد ندیم کو شاندار کامیابی پر خراج تحسین، مستقبل میں مزید کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ بلاول بھٹو کا بھارت کے خلاف بڑا سفارتی مشن، چیئرمین پیپلز پارٹی سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر اور جلیل عباس سیلانی امریکہ میں موجود۔ سینیٹر مصدق ملک اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان سمیت دیگر ارکان امریکہ میں وفد میں شامل ہوں گے۔ بلاول بھٹو 2 جون سے امریکی حکام سے باضابطہ ملاقاتیں شروع کریں گے۔ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کے موقف سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ بھارت کے پروپیگنڈے سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔
बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस और जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात भी मुतवक्के। वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार से भी मिलेगा। पार्लिमानी कमेटी 9 जून को बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के दौरे करेगी। सदर ट्रंप बिलावल भुट्टो को वेलकम करने के लिए तैयार। पाक भारत जंगबंदी का एक बार फिर क्रेडिट लेते हुए कहा, हमने पाक भारत जंग को रोका वरना ये जंग एटमी तबाही में तब्दील हो सकती थी। दोनों मुल्कों ने मेरे कहने पर लड़ाई रोकी जिस पर उनका शुक्रगुजार। जंगबंदी पर जोर देते हुए मजीद कहा, आमतौर पर वहाँ गोलियाँ चलती हैं, हमने तिजारत पर बात की। पाकिस्तान और भारत ने जंग की तो मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं। पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। शशि थरूर की क़यादत में भारत के सिफारती मिशन को सुबकी का सामना। कोलंबिया का दहशतगर्दी पर भारतीय बयानिया मानने से इनकार। भारतीय वफ्द के सरबराह शशि थरूर का सिफारती महाज पर नाकामी और पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़। कहा, कोलंबिया ने पाकिस्तान में भारतीय हमलों में जाँ बहक अफराद पर दिली ताज़ियत की। भारत में हलाक होने वालों से हमदर्दी नहीं दिखाई। कोलंबिया की हुकूमत के रद्द अमल से मायूस हुए हैं। दुनिया भारतीय बयानियां कबूल करने को तैयार नहीं। भारतीय सिफारती वफूद की पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट नाकाम हो गई। सेनेटर शली रहमान ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि दुनिया की किसी भी जंग में पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। भारत अब खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। मोदी हुकूमत ने बहतान को खारजा पॉलिसी बना लिया। भारत इंतहा पसंद हिंदुत्व रियासत बन चुका है। अगर सबूत की बात करते हैं तो सबूत हमारे पास हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में भारत को भरपूर जवाब देंगे। के लिए खतरा है। नफरत अंगेज बयानात से मुसलमानों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। भारत मजहबी तफरीक से बलतर होकर शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। सियासी मकासद के लिए मजहबी मुनाफरत फैलाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी भारतीय कार्रवाइयों का नोटिस ले। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। दरियाए चनाब पर एक बार फिर आबी जारहियत पानी रोक लिया। हेड मराला हुकाम के मुताबिक भारत ने दरियाए चनाब में 2 दिन पहले 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा था। आज पानी मुकम्मल रोक दिया। भारत के पानी रोकने से मराला के मकाम पर दरियाए चनाब खुश्क हो गया। मराला के मकाम पर इस वक्त सिर्फ 8000 क्यूसेक पानी दाखिल हो रहा है। मार्का हक के बाद भारत के पाकिस्तान मईशत पर हमले भी नाकाम। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में मजमूई तौर पर बेहतरी आई। चीन की जानिब से तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और सनती शोबों में $1 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी की गई। अमरीकी और बरतानवी सरमायाकारों की जानिब से भी पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार। अमरीका की जानिब से $11 करोड़ 11 लाख, जबकि बरतानिया की जानिब से $21 करोड़ 56 लाख सरमायाकारी रिकॉर्ड। बानी पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान। बानी से मुलाकात के बाद सेनेटर अली जफर ने कहा, जो तहरीक चलेगी ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं चली होगी। चंद दिनों में एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली तैयार हो जाएगी। एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बानी ने कहा, हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुल्क भर में एहतजाज करेंगे जिसे मैं जेल से लीड करूंगा। आइंदा मुलाकात पर एहतजाजी तहरीक का प्लान पेश करूंगा। बानी ने कहा कि हमें अदलिया और एग्जीक्यूटिव से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अडियाला में तोशा खाना 2 पर समात। बानी पीटीआई और अहलिया की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। जेल हुकाम के मुताबिक बुशरा बीवी का मौक़िफ़ था, मंगल को बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई गई, इसलिए अदालत नहीं आएंगी। बुशरा बीबी की अदम दस्तयाबी के बायस 4 गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड न हो सके। अदालत ने केस की समाअत के लिए 3.5 घंटे तक इंतजार किया। अदालत की आइंदा गैर हाजिरी पर बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के अहकामात की भी हिदायत। समाअत 3 जून तक मुलतवी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी और हार्डन दी स्टेट कमेटी का तीसरा इजलास। वज़ीर दाखिला ने कहा, नादरा एग्जिट पॉइंट्स पर लाइव डाटा वेरिफिकेशन की सहूलत फराहम करेगा। तमाम इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। मोहसिन नकवी का फैज़ाबाद इंटरचेंज का दौरा, ट्रैफिक के बहाव का तफसीली जायजा, रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के आगाज से कबल ट्रैफिक का मुअस्सर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की हिदायत। डिजिटल पाकिस्तान की जानिब कदम, IMF को एक आंख न भाया, बिटकॉइन माइनिंग और AI को बिजली फराहम पर एतराज़, एतमाद में ला लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इकदामात मुशावरत से तय करने का मुतालबा, क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस ताहाल लीगल ना होने पर बिजली मख्तस करने पर वजाहत मांग ली। हुकूमत तनख्वाहदार तबके को रिलीफ पर भी IMF को राम न कर सकी। प्रॉपर्टी के शोबे को भी रिलीफ देने की तजवीज़ पर ताहाल फैसला न हुआ। पाकिस्तान और IMF का वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाबिता मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन गरेयर के दरमियान राबिता, दोनों का तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफाक। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक फ़रीक़ैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल करने के अज़्म का भी इज़हार। सिंध हुकूमत ने तरक्याती अहदाफ का दूसरा एडिशन मुकम्मल कर लिया। सूबाई तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान। सिंध काबीना की तौसीक से सूबाई बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत अगले माली साल नई तरक्याती स्कीमें बजट में शामिल करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स भी तरक्याती बजट का हिस्सा होंगे। कराची में भारी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। लांधी फ्यूचर मोड़ के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर ने शहरी को कुचल दिया। शनाख्त 35 साल इफ्तिखार अहमद के नाम से हुई। मुतवफ़ी सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। ईद कुर्बान के लिए जानवर की तलाश। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। खरीदारों का कुर्बानी के जानवर इंतहाई महंगे होने का शिकवा। व्यापारी 35 से 40 किलो वजनी बकरे के 1.5 लाख रुपए मांगने लगे। 4 से 5 मन वजनी गाय की कीमत 5 लाख रुपए से भी ऊपर। शहरी कीमतें पूछकर खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश, मरी शहर और गिरदोनवा में अब्र रहमत। महकमा मौसमियात की बारिश के साथ साथ यालाबारी की भी पेशगोई। लाहौर में तेज़ हवाओं के बायस मौसम खुशगवार। गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान।